नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। पीएम मोदी ने कहा कि हमने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भेदभाव खत्म किया है। जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं उन तक सरकार खुद जा रही है। सरकार की इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समाप्त किया है, भेदभाव समाप्त किया है। लाभार्थी तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती है और न ही जाति देखती है। और जब आप किसी गांव में 50 लोगों को मिलना तय और 50 को मिल जाता है, किसी के पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी पहचान न हो कुछ भी हो, लेकिन एक बार सबको मिलता है, मैं समझता हूं जहां कोई भेदभाव नहीं है वही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पे साधा निशाना। BJP was the one which was confused at times and they wanted to change the agenda by their polarizing tactics. But Kannadigas, as also our Congress leadership, did not permit them to move away. As far as predictions are concerned, I will like, we are deeply humbled and with a sense of humility while thanking people of Karnataka, I say, let us wait till tomorrow. The results will be out, it will be clear. We will make a detailed comment there. BJP also claiming that BJP is going to get majority and also doing on backup plan with JDS. How can it possible? At least one thing is clear: BJP has admitted defeat. Once they have admitted defeat, then I think your predictions are correct. Let me say, well, everybody is free to go wherever they want to. I have no comment to offer on that. I will only tell you. कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार ने कहा कि एग्जिट पोल की अपनी थ्योरी होती है, मैं उन्हें नहीं मानता। I don't see. I am a practical, grounded man. You know, exit poll. They have their own theory. I don't tell there is wrong. Many of them succeeded, many of them have failed. But we don't go by that samples. We don't go by. Practically, I am a practical man. I have also made 3-4 times of surveys. All surveys are coming in differently. But my sample size is too high. In that, we will have a comfortable majority. It is not the largest party. It will be the party with a majority. And what's your prediction, sir? I don't want to predict it. What will happen, I will tell. I am not a predictor. I am a go-getter. Sir, you see the statement of Tanveer Ahmed, national spokesperson of JDS. He claimed that he already decided JDS will go with party because he is kingmaker. I don't know. I don't want to comment on him. It is his party. It is goodwill. His goodwill. Let them take their own call in the interest of the their party and in the interest of the national scene. I don't want to comment on that. Sir, you have any information? BJP and JDS talking with each other? I don't know about it. I don't want to involve. I don't want to. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्ष पे निशाना साधते हुए कहा कि हम पूरी बहुमत के साथ जीतेंगे। Even I say that there is no chance for Hanga Assembly. We will win with comfortable majority. Okay. And I am very much confident. So last time also there were allegations of BJP making up, Operation Lotus kind of a situation here in Karnataka. No, see, we never did it. 1 year they only ruled, no. 1 year it was a coalition government. And it failed miserably. Sir, DK Shiv Kumar says that it is they did the unholy alliances. Sir, DK Shiv Kumar says that Congress party will come around 141 is what he is guessing. How much is confident of? Let him be happy with 141 till tomorrow. The reality will be there. Sir, what would be the Chief Minister's face for BJP, sir?
Let us see. Let us have a legislature party and But sir, your parliamentary sir, JDS is very confident, and they said कि we will be the definitely kingmaker, and they are already decide to whom they are going. I just saw this thing that Kumaraswamy said he will not become king, he will become king. And everybody has got his own right to have his own assessments. Any I don't know. I don't want to comment on other party leaders' assessments. So your I got my own assessments. your comments on R. Ashoka's statement yesterday, sir. But I don't know. I have not talked to what him. Is your comment What about is his B plan? I am not aware. But sir, overall, one important question: how and why you are so confident after this exit poll? You think that all exit poll will be wrong? It has been proved wrong last time in 2018. Yes, sir. The same thing will be proved wrong this time. टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में अब तक हुई 6 गिरफ्तारियां। इसमें स्पेशल सेल ने इनिशियली 4 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें योगेश टुंडा था, उसके साथी दीपक, जिसको तीतर बोलते हैं, दीपक डबास वो था, एक रियाज खान था और चौथा इनके साथ राजेश भवानिया था। तफ्तीश के दौरान 2 लोगों के रोल का और पता चला था, जिसमें एक विजय चवन्नी करके था और छठा उसके साथ अताउल रहमान था। जो चवन्नी था, इसने सीसीटीवी कैमरा के आगे चादर लटकाने की कोशिश की थी कि ये इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरा में कैद ना हो, और जो अताउल रहमान था उसको इन्होंने जो चाकू से स्टैबिंग करी थी वो उसको दे दिए थे, उसने उनको डिस्पोज कर दिया था। सर किस तरह से इन्होंने क्योंकि अभी तक पुलिस रिमांड में थे ये लोग, क्या बताया इन लोगों ने और क्या गैंगवार का जो सामने आया था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। गैंगवार में ये था कि गोगी के मरने के बाद इनका मेन टारगेट टिल्लू था ही, और दोनों जो दीपक तीतर हैं और योगेश टुंडा है, इन पे भी पहले स्टैबिंग हो चुकी है जेल या जेल प्रोडक्शन के दौरान खर्जे में। तो तीतर के तो 2 बार स्टैबिंग हुई है, तो उसके लिए इनको ये था कि टिल्लू या टिल्लू के आदमियों ने ये स्टैबिंग करवाई है, और इनको एक पुराना ग्रज भी था, प्लस इनका जो गैंग लीडर था जितेंद्र गोगी, उसको मरवाने में भी इनको पूरा वो था कि टिल्लू के शूटर थे और टिल्लू ने उसको मरवाया। टुंडा उसके साथ पड़ा था, पुराना जानता था, दूर रिश्तेदारी में भी था उसके साथ। तो जब ये 22 को मंडोली से आया तो तभी से इन्होंने प्लान कर लिया था, क्योंकि ये नीचे वाले सेल में था, ये ऊपर थे, और जो रेलिंग थी वो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। और जो इनके साथ तीसरा रियाज खान है, उसने पहले भी एक बार जेल में ऐसे सलाखें तोड़ी हुई हैं पुराने इंसिडेंट में। वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, तो उसको लोहे के काम की काफ़ी महारत थी। तो उसने गीला कपड़ा करके चादर में क्योंकि चादर जब स्ट्रेंथ कपड़ा गीला हो जाए, नॉट उसको बन जाए, तो इन्होंने एक वाइपर था, वाइपर की रॉड तोड़ ली थी, तो उसको जैक की तरह इन्होंने चादर में जैसे चादर का एक तरीके से जैक बना लिया। तो गीली चादर थी, तो दोनों सलाखों से जब उन्होंने लपेटी तो उसको वाइपर को घुमाते रहे, तो वो जो रॉडें थी बेंड होके बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गई। तो उन्होंने उसको पुश किया, तो इतनी जगह वहाँ से बन गई कि उससे ये नीचे रैपल डाउन कर पाए। तो इन्होंने देख लिया 6 बजे चक्कियाँ खुलती हैं, खुलने के बाद चक्की बाहर से ही खुलती है जेल वाले जब खोलते हैं, तो उसके बाद जो सेल है उसमें सारे इनमेट्स एक दूसरे से मिंगल कर सकते हैं। ऊपर का सेल अलग था, लेकिन वो इन्होंने रॉडें तोड़ दी और वहाँ से ये चादर से रैपल डाउन कर गए। और जैसा ऑलरेडी फुटेज में अब तो वाइडली ऑलरेडी देखा गया है, उसने टिल्लू ताजपुरिया ने रोहित के जो चक्की थी उसमें घुसने की कोशिश करी, वो उसके साथ थोड़ा सहानुभूति भी रखता था। दोनों ने गेट को अंदर से पकड़ा, लेकिन क्योंकि इनके पास 4 चाकू थे जो इन्होंने एग्जॉस्ट फैन से बनाए थे, जो एग्जॉस्ट फैन के सपोर्ट मेंबर्स होते हैं, वो इन्होंने एग्जॉस्ट फैन को तोड़ के उसके जो ब्लेड्स थे वो अलग फेंक दिए थे, और जो मेंबर्स थे एग्जॉस्ट फैन के, उसको इन्होंने जो ये सैनिटरी टाइल होती है, जो इनके वहाँ एक मेकशिफ्ट बाथरूम होता है हर एक बैरक या सेल के अंदर, तो उसकी जो लूज टाइलें थी उसमें से एक टाइल उखाड़ के, टाइल की बाथरूम टाइल की जो रिवर्स साइड होती है वो काफ़ी खुरदरी होती है, तो इनको एक मेंबर को चाकू बनाने में, उसकी धार लगाने में और तेज़ करने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे। तो पूरी रात टुंडा और रियाज खान यही करते रहे।
तो सुबह तक इन्होंने वो 4 जो चक्कू थे वो बना लिए उसके मेंबर्स के। एक इनके पास पहले से 2 कोई पतले पतले तीखी पत्तियां टाइप थी जो इन्होंने उनको जोड़ के रस्सी का मुट्ठा बना के वो 5वां बना लिया। तो 2 उनमें से दीपक तीतर के पास थे और उसका काम स्टैबिंग का ही था और टुंडा उसके साथ था। रियाज खान को भी यही टास्किंग थी और बाकियों को दूर रखना था। भवानी अब एंड में उतरा तो उसका भी मेन काम यही था कि बाकी इनमेट्स इसमें ना आए। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।